کہ شہر میں آٹے کی قلت کا مسئلہ ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ حکومت کنٹرول ریٹ پر آٹے کی سپلائی یقینی بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ آٹے کی صورتحال پر تفصیلات جانتے ہیں ساؤتھ بٹ کی اس رپورٹ میں۔ میرے پاس ہے 860 روپے۔ ضلع انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ شہر میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا 860 روپے میں ہر دکان پر میسر ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا آٹے کا تھیلا واقعی 860 میں مل پاتا ہے یا نہیں۔ چلیے ناظرین، گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ اور فیصل ٹاؤن کا علاقہ گھوم لیا ہے، مجھے 860 میں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا نہیں ملا۔ جوہر ٹاؤن آیا ہوں، ایک دکان ہے، ان سے چل کے کوشش کرتے ہیں شاید مل جائے۔ جناب، آٹا کتنی دیر سے شارٹ ہے؟ 860 میں 20 کلو کا تھیلا ہے؟ 2-3 ہفتے کے بعد 2 توڑے ملتے ہیں یا 3۔ 2-3 ہفتے کے بعد 2-3 توڑے 3 توڑے نہیں دیتے، 5 بھی نہیں دیتے۔ ہول سیلر نہیں دیتا؟ بالکل نہیں دیتے، اس کا مہینے میں 2-3 لاکھ کا سامان آتے ہیں لیکن ابھی آٹا نہیں دیتے، شارٹ ہوا ہے۔ شارٹ۔ ناظرین، جوہر ٹاؤن کا علاقہ بھی گھوم لیا، کوشش کی کہ شہر کے اہم اور مختلف علاقوں میں پھر کے 860 روپے میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا ڈھونڈ لیں، ہمیں تو ملا نہیں، شاید صارفین کو ملتا ہو۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں 860 میں یہ تھیلا مل رہا ہے یا نہیں۔ چلیے، آپ یہاں پہ 10 دکانیں پھر لیں، کسی دکان پہ اویلیبل نہیں ہے، آٹے کا تھیلا مل نہیں رہا۔ اب 5 کلو والا ہو، 10 کلو والا ہو یا 20 کلو والا ہو، 20 کلو والا تو مل نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں پیکنگ ہی نہیں آ رہی، 15 کلو کی آ رہی ہے۔ آٹا پہلے سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اور پہلے جو 20 کلو کا توڑا ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا، اور 10 کلو ہی آٹا 5-5 کلو 750 روپے کا ملا ہے۔ ناظرین، شہر کے مختلف علاقے گھوم لیے، خریداروں کی بات بھی سنا دی، 860 میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا مجھے نہیں ملا۔ اب شاید یہ تھیلا ایسی دکانوں کی ہی زینت بنے گا، آپ کے گھروں کی نہیں۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ، ساؤتھ بٹ، لاہور۔ شادمان میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ 15 کلو آٹے کا تھیلا کل سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور فلور ملز مالکان شریک ہوئے اور آٹے کے بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا احمد نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آٹے کے بحران سے نمٹنے کے لیے ڈی سی آفس کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے اور آٹے کے بحران پر قابو پانے کے عزم کا اظہار کیا۔ عاصم رضا کا مزید کہنا تھا کہ 15 کلو آٹے کا تھیلا کل سے مارکیٹ میں عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ قیمتوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی ریٹیل پرائس 860 میں دستیابی ممکن نہیں بنائی جائے گی، جبکہ ایکس مل بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 837 ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں گندم کی قلت ہے، حکومت بیرون ملک سے گندم امپورٹ کر رہی ہے، فلور ملز کو گندم کم مل رہی تھی جس سے بحران پیدا ہوا۔ لاہور میں ملز کو 1,28,000 تھیلے گندم مل رہی ہے، جبکہ لاہور کی ضرورت 2,30,000 تھیلے ہے۔ ملک میں گندم کی صورتحال اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور جو شارٹیج ہے اس کے لیے وفاقی حکومت نے باہر سے گندم امپورٹ کی ہے، لیکن لاہور میں چونکہ اس ٹائم پہ جتنی گندم دی جا رہی ہے وہ اتنی کوانٹٹی نہیں ہے جتنی مطلوبہ ڈیزائرڈ یا ڈیمانڈڈ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ہنگامی میٹنگ آج ہم نے کی تھی، اور اس میں ملرز کی جو مشکلات تھیں ان کو اور جو حکومتی موقف تھا اس کے حوالے سے ایک میٹنگ کی گئی، جس میں یہ اعادہ کیا گیا کہ کل سے جو مارکیٹ میں جتنی سپلائیز جائیں گی وہ ڈی سی آفس کی مانیٹرنگ ٹیمیں جو سی ہیں ان کے سپرویژن میں جائے گی۔ شہر میں آٹے کی قلت برقرار ہے، ایک طرف جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے حکومت پر تنقید کے خوب نشتر چلائے۔ شہر میں آٹے کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے مارکیٹ میں آٹے کی عدم دستیابی پر حکومتی پالیسیز پر تنقید کی۔ غریب لوگ تو روٹی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آج آٹا نایاب ہو گیا ہے کہ کسی شاپ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ پنجاب جیسا صوبہ جو ہے کہ جہاں پہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور کثرت سے ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ آٹا نہیں مل رہا۔ آج اس کی جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ آٹا نہیں مل رہا۔ آٹا نایاب اور مہنگا فروخت ہونے پر نون لیگی ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ آٹے کی بات کرتی میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، مجھے تو لگتا ہے عمران نیازی سب کچھ ہی کھا گیا، اس کو کوئی غریبوں کا خیال نہیں ہے۔ یہ عمران نیازی کے ہوتے ہوئے کہ ہمیں آٹا بھی ملے گا، یہ تو کنفرم تھا کہ اس نے آنا ہے، اس نے جو خواب دکھائے تھے وہ اس نے اپوزٹ کرنا ہے۔ تو
लीगी रहनुमाओं का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा और फिर नायाब हो जाना हुकूमती नाअहली का सबूत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि अवाम की खिदमत करना मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात नहीं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम। आटे की कीमत बढ़ने से नान रोटी की कीमत में भी इजाफे का खदशा है। दुकानदार आटे की अदम दस्तयाबी से परेशान है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के मसाइल कम न हो सके। आटे की कीमत में इजाफे से शहरी शदीद परेशान। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से आटा नायाब हो गया। मजीद अगर इन्होंने नान रोटी महंगी की तो लोग जो है ना वो सड़कों पे निकल आएंगे। एक मजदूर जो 1000 रुपया कमाता था उसका आगे गुजारा हो जाता था। अब वो 1000 रुपया लेके दुकान पे जाता है तो वो देखता है कि मैं चीनी लूँ, आटा लूँ, क्या लूँ बच्चों के लिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में आटे की कीमत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। आटा मिल नहीं रहा तो दो तीन घंटे उधर लाइन पे लगे जाते हैं। आटा मिल नहीं रहा, फैन भी नहीं मिल रहा, दूसरे नंबर पे गैस भी महंगा हो रहा है, तो ना रोटी महंगी होनी है। 860 रुपए का तोड़ा था तो 1100 रुपए में मिल रहा। अब मैदा फैन है जो वो 6000 रुपए की बोरी होगी, क्या करें, गैस महंगी है, पैसे नहीं पूरे होते। हुकूमत के अवाम को रिलीफ के दावे खोखले साबित हुए। आटे की कीमत में इजाफे से नान और रोटी की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन अली अदनान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। खुद साख्ता महंगाई अवाम पर भारी पड़ रही है। ब्रायलर और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। एक दिन में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में भी 9 रुपए का इजाफा देखा गया, जबकि सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। अवाम जाएं तो जाएं कहां। शहर में चिकन और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमती नरखनामे में ही ब्रायलर की कीमत में एक दिन में 9 रुपए का इजाफा हो गया। चिकन फी किलो 252 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि गुज़श्ता रोज चिकन की कीमत 233 रुपए फी किलो थी। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो हुकूमती जारी करदा कीमतों और बाजार में रेट्स में वाज़े फर्क दिखाई दिया। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट की अदम तवज्जी के बाइस दुकानदार सब्जियां मनमाने रेट्स पर बेचने लगे। नरखनामे में आलू की कीमत 75 रुपए फी किलो, बाजार में आलू 80 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसी तरह टमाटर 98 रुपए की बजाय 120, प्याज 67 रुपए की बजाय 80, लीमू 80 की बजाय 120, भिंडी 80, मटर 202 की बजाय 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान दिखाई दिए और इंतजामिया की नाअहली पर फट पड़े। गोभी 80 रुपए किलो दे रहे हैं, गाजर 80 रुपए किलो दे रहे हैं, प्याज 80 रुपए किलो दे रहे हैं, हर शहर डी महंगी दे रहे हैं। वो 100 रुपए किलो आलू दे रहे हैं, जड़े बाहर 70 रुपए किलो ने। सब कुछ टमाटर क्या हुआ है, 100 रुपए से ऊपर है। अभी भी टमाटर 100 रुपए से ऊपर है। तो सस्ता क्या हुआ, कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। एक दो चीजें सस्ती कर दी हैं तो कहने सब कुछ सस्ता हो गया। अभी ये सारा कुछ महंगा ही है। एक चीज आज लेते हैं उसका रेट कुछ और है और शाम को वही चीज लेंगे उसका रेट और होगा। दिन ब दिन घंटों के हिसाब से जो है रेट बढ़ रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी में बोली को कंट्रोल न करना और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मार्केट्स में प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट्स का गैर हाजिर होने की वजह से अवाम पर महंगाई का इजाफी बोझ पड़ रहा है। अब देखना यह है कि अवाम को इस दलदल से कौन निकालता है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जिशान सफदर, सिटी 42। पंजाब में गिरां फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में इजलास हुआ। अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस आटा और चीनी के निर्खों, दस्तयाबी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रवायती इकदाम करने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवा माह 47 अफराद को गिरफ्तार करके 42 के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी पर 60 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने हिदायत की कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने महकमे ज़राअत को कहा कि सब्जियों की दस्तयाबी के हवाले से फाल किरदार अदा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में गिरां फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज सरकारी गंदम की फराहमी, पिसाई और मार्केट में सप्लाई के अमल की मुकम्मल निगरानी की जाए। जो मिल सरकारी गंदम की पिसाई नहीं करती उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में टाइगर फोर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। रिजवान नकवी, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। अशिया खुरनोश के सरकारी नेकनामे अवेजा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने जुल्फिकार अहमद घुमन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक, एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन अमान अनवर कुदवाई,
डायरेक्टर फूड लाहौर, ADCG लाहौर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, तमाम ZORs, जिला अफसरान और तमाम DCs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा का गामे मरासी का तस्करा। सैयद हसन मुर्तजा की तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में सैयद हसन मुर्तजा ने महंगाई, करप्शन में हुकूमत के किरदार को दिलचस्प पैराए में बयान किया है। जमात इस्लामी शर्की लाहौर की जानिब से बरकी रोड पर ग्रैंड फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की खुसूसी शिरकत हुई। बरकी रोड पर जमात इस्लामी शर्की लाहौर की जानिब से ग्रैंड फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में इस्लामी तालीमात, समाजी और सियासी मसाइल समेत मौजूदा मुल्की सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक शर्की लाहौर की तंजीम साजी पर शुरका ने खिताब किए। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ जिक्रुल्लाह मुजाहिद, ग्रुप लीडर जमात इस्लामी वकार नदीम बड़ाइच, चौधरी मंजूर हुसैन गुज्जर, चौधरी मोहम्मद इजाज और अमीर जमात इस्लामी शर्की लाहौर डॉक्टर महमूद अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सेनेटर सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत को नालायक और नाअहल करार देते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी अरूज पर है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हर दौर के टाइगर्स ने मुल्क के पैसे खाए हैं। टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं बल्कि आटा, चीनी और दालें सस्ती करने की जरूरत है। वजीर खारजा ने FATF और बैरूनी कर्जों को कम करवाने के लिए 27 से 21 पॉइंट्स पूरा करने का ऐलान किया है। मजीद पॉइंट्स पर पूरा उतरने के चक्कर में महंगाई करके अवाम को निचोड़ रहे हैं। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है। हम चित्राल से कराची तक लोगों को महंगाई के खिलाफ खड़ा करेंगे। हर हुकूमत ने यही टाइगर फोर्स बनाई है और वही टाइगर फोर्स ने भी कौम की दौलत पर कब्जा किया है। तो इन्हीं टाइगर फोर्स ने तो चीनी खाई है, इन्हीं टाइगर ने तो आटा खाया है, इन्हीं टाइगर ने तो जलजले के नाम पे जो पैसा आया था वो हड़प किया है। इन्हीं टाइगर्स ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान जो पैसा आया था उसको हड़प किया है। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी के पोजीशन होल्डर्स, बच्चों, अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों समेत प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर में शील्ड तकसीम की और वतन अजीज की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। टोलिंगटन मार्केट की बंदिश के लिए JFK एनिमल एंड रेस्क्यू शेल्टर का एहतजाजी मुजाहिरा। रजाकारों ने जानवरों के हकूक की पासदारी और टोलिंगटन मार्केट की बंदिश के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। टोलिंगटन मार्केट की बंदिश के लिए जानवरों के हकूक पर काम करने वाली तंजीम JFK एनिमल एंड रेस्क्यू शेल्टर के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले रजाकार, तुलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन टोलिंगटन मार्केट की बंदिश के लिए नारेबाजी करते रहे। JFK शेल्टर की CEO जूफिशां का कहना था कि टोलिंगटन मार्केट में जानवरों को इंतहाई गलीज माहौल में रखकर उन पर जुल्म किया जाता है। बीमार जानवरों को सेहतमंद जानवरों के साथ एक ही पिंजरे में रखा जाता है। लिहाजा टोलिंगटन मार्केट को बंद करके जानवरों को पुरतशद्दुद और गलीज तरीन माहौल से निजात दिलाई जाए। हम डॉक्टर्स यहाँ पे लेके आते रहे, हमने खुद सफाइयाँ की हैं, झाड़ू मारे, सर्फ से धोए पिंजरे, खाना डालते रहे, 2 टाइम से पानी देते रहे जानवरों को। ये ना खाना देते हैं, ना पानी देते हैं, ना उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है और बस सिर्फ जुल्म है। वो कैदी हैं, उनको वो वाले संगले बिल्लियों को डाले में जो अडियाला जेल में किसी टेररिस्ट के भी नहीं होंगे। क्रॉस कंटामिनेशन है, यहाँ पर जो गोश्त है उसके बिल्कुल साथ ही बीमार जानवरों को रखा जा रहा है और जो कुछ हेल्दी जो नए जानवर आ रहे हैं उनको भी बीमार जानवरों के साथ रखा जा रहा है, जिसमें दूसरे वाले जानवरों भी जो हैं वो भी बीमार होते जा रहे हैं। AC सिटी तबरेज मरी मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के लिए टोलिंगटन मार्केट पहुंचे और मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। यहाँ पे साइट को मूव करने के हवाले से हमारा प्लान चल रहा है। 3 महीने से हमारी इस पे वर्किंग भी चल रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ माह में इसको हम यहाँ से मूव आउट करेंगे। जो हमारे यहाँ पे आज प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, उनके जो मेन इश्यूज़ हैं वो ये है कि यहाँ पे जो जानवर बेचे जा रहे हैं उनके लिए कंडीशंस अच्छी नहीं है, उन्हें खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उनको तंग पिंजरों में रखा जाता है। AC सिटी का कहना था कि जानवरों के साथ जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया टोलिंगटन मार्केट को यहाँ से मुंतकिल करने के लिए मनसूबाबंदी कर चुकी है। कैमरामैन अली हसन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42।
थाना शाहदरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे में गद्दारी को दफात को हज़फ कर दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट आला हुकाम को दे दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अलावा नामजद तमाम मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया गया है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तहकीकात बाकी हैं। मुद्दई मुकदमे का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। अलबत्ता नवाज शरीफ की तकरीर वाला मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है। मुकदमे से राजा जफरुल हक, सरदार अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सलीम जिया, इकबाल जफर झगड़ा, सलाहुद्दीन तिरमजी, मरियम नवाज का नाम निकाल दिया गया है। एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब अहमद, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, बेगम नजमा हमीद, बेगम जकिया शाहनवाज, तारिक रजाक चौधरी, सरदार याकूब निसार का नाम भी निकाल दिया गया है। रुकने सूबाई असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि पीर तक का वक्त दिया है, अगर नून लीग क़यादत का फैसला नहीं आता तो अपना फैसला करेंगे। और फिर उसके बाद मैं जब किसी सियासी पोजीशन में नहीं था तो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने का इरादा किया, जिसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब से कुछ असूली इख्तलाफात ज़हनी तौर पे हो चुके थे, जिस बिना पर मैं साइड पे हो गया। अमली सियासत में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था, खान साहब के विजन को। अभी मौजूदा इंतखाबात में मियां शहबाज शरीफ साहब के पैगाम पर और हमारे इलाके के साबका MNA और मौजूदा MNA राना तनवीर साहब के पैगाम पर और दोस्तों के कहने पर जब मैंने ये टिकट एक्सेप्ट की तो इस शर्त के ऊपर एक्सेप्ट की, और पीर अख्तर रसूल साहब भी गवाह हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून से नाराज रुकने असम्बली अशरफ इंसारी ने कहा है कि नून लीग के अरकान का जलील अहमद शरकपुरी के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा। कहते हैं मैं पीर को इजलास में शरीक हूंगा, अगर मेरे साथ कोई हरकत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मुस्लिम लीग नून से नाराज रुकने असम्बली अशरफ इंसारी अपनी ही जमात के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला में यूनुस इंसारी की क़यादत में जब पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी, अशरफ इंसारी का मजीद कहना था कि जलसा और एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जलसा और एहतजाज बामकसद होने चाहिए। इदारों पर हमला करना नून लीग का वतीरा बन चुका है। अशरफ इंसारी का मजीद कहना था कि नून लीग के अरकान असम्बली ने जलील अहमद शरकपुरी के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और जस्टिस अली बाकर नशवी के विजन को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के IT विंग ने अदालती उमूर को पेपरलेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाने के काम का आगाज किया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और जस्टिस अली बाकर नजफी के विजन को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के IT विंग ने अदालती उमूर को पेपरलेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाने के काम का आगाज कर दिया है। कोविड-19 यानी कोरोना ने जहां हमारे मुआशरती रहन सहन में बेपनाह तब्दीलियां की हैं, वहीं अब दौरे जदीद में पेपरलेस टेक्नोलॉजी यानी कागज के बगैर दफ्तरी उमूर की अंजामदही को भी फरोग दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम अली खान ने जस्टिस अली बाकर नजफी को ये जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने अप्रैल 2020 से अब तक इनकलाबी तब्दीलियां की हैं। हाई कोर्ट में जदीद टेक्नोलॉजी के आगाज से अब तक 3000 केसेस को ऑनलाइन किया गया और तमाम दस्तावेजात को भी स्कैन कर लिया गया है। वकला की सहूलत के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया, जिसके जरिए केस को फाइल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए 40 नए टच स्क्रीन लैपटॉप्स भी खरीदे गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का ये सफर यहाँ रुकेगा नहीं। सिंगापुर की कोर्ट्स में इस अमल का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिनके ताउन से 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें केस फैलो मैनेजमेंट के हवाले से तरबियत फराहम की जाएगी। इन तमाम इकदामात के बाद बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस कासिम अली खान और जस्टिस बाकर अली नजफी हाई कोर्ट को पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल पहली अदालत बनाने के सफर का आगाज कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने से सनअती इनकलाब आ जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर और डेरा गाजी खान ऐवान सनअत व तिजारत के नौमुंतखब सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने मुलाकात की। इस मौके पर जनूबी पंजाब में सनअत व तिजारत के फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी को डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जनूबी पंजाब में खुसूसी तौर पर सनअत व तिजारत को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। ताजरों और सनअतकारों के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया गया है।
मुजफ्फर गढ़ में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि इस सनती जोन के क़याम से खित्ते की मुआशी तकदीर बदल देंगे। डेरा गाजी खान में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। जलालुद्दीन रूमी ने मजीद कहा कि सनत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए बुज़दार हुकूमत का विजन और काविशें लायके तहसीन है। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की मुईशत और दिफा के लिए बड़ी अहमियत का हामिल और सीपैक का गेटवे है। यही वजह है कि हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा इस खित्ते और इस अवाम को खसूसी अहमियत दी है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा, शाफे हुसैन और GM सिकंदर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का मुतालबा सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन ने पेश किया था। गवर्नर पंजाब का रायबंड रोड पर ग्रेन्स होम प्रोडक्शन के शोरूम का दौरा, घरेलू और ऑफिस फर्नीचर की प्रोडक्ट्स की वैरायटी को सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने रायबंड रोड पर ग्रेन्स होम प्रोडक्शन शोरूम का दौरा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हमराह बेगम गवर्नर भी मौजूद थी। ग्रेन्स होम में घर और ऑफिस फर्नीचर तैयार किया जाता है। गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से ब्रीफ किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को सराहा। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की बादशाही मस्जिद आमद हुई। मीर अफजल खान ने तारीखी फन तामीर की हामिल बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की बादशाही मस्जिद आमद बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। मस्जिद इंतजामिया ने मेहमान को तारीखी हैसियत बारे ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शानदार तारीख की हामिल बादशाही मस्जिद को देखकर बहुत खुशी हुई। गुजरावाला जलसे के सिलसिले में लीगी रहनुमा हाजी हनीफ की रिहाइशगाह पर गार्डन टाउन में लीगी रहनुमाओं की मीटिंग हुई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि हुक्मरान मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा और घबराहट का शिकार हैं। 16 अक्टूबर को जलसा कामयाब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी हनीफ की रिहाइशगाह गार्डन टाउन में लीगी रहनुमाओं से मीटिंग करते हुए जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के हमरा लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद गुजरावाला जाएगी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी है। उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अंगूरी बाग में मीटिंग हुई। मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान किया गया। MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद समेत वकला ने शिरकत की। अंगूरी बाग नर्स शालामार बाग में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल मलिक सईद की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि वो कामयाब होकर आइन और कानून की बालादस्ती और वकला बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। आम आवाम पार्टी के मरकजी दफ्तर में अहम इजलास हुआ। महंगाई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। आम आवाम पार्टी के इजलास में राना कौसर सुलहरी, एडवोकेट उम्मीदवार नायब सदर मॉडल टाउन सीट लाहौर बार, अकील सियाल, मलिक यूनुस, मलिक शौकत, बिलाल बशीर, शेख सदाकत, जफर गाजी, वाजिद और दीगर शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के शुरका ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के ज़रिए एहतमाम खत्म नबूवत इनाम घर का इनेकाद किया गया। इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर मोटरसाइकिल समेत नकद इनामात दिए गए। सब्ज़ार के इलाके में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से खत्म नबूवत इनाम घर में इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत नकद इनामात दिए गए। इनाम जीतने वाले खुश दिखाई दिए और जमीयत उलमा इस्लाम की काविश को सराहा। खत्म नबूवत इनाम घर ये JUI की तरफ से मुनक्किद किया गया है। इसमें सवालात पूछे गए हैं और हमने जो सवालात के सही जवाब दिए हैं, तो इसमें हमें इनामात भी मिले हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें बहुत मज़ा आया।
जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज ज़ैनुल आबिदीन और मौलाना अब्दुल शकूर का कहना था कि इनाम घर मुनक्किद करवाने का मकसद बच्चों को इस्लामी तारीख से आगाही देना और ख़त्म नबूवत की अहमियत को उजागर करना है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, उसके ज़हनों में इस्लामिक हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, तो हम उनके आज इनाम घर रखा था, उनसे सवालात पूछे गए, उनको इनामात दिए गए ताकि उनके ज़हन में जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो ख़राब किया जा रहा है उसको बहाल किया जाए। खत्म नबूवत इनाम घर में मौलाना लावसाया, मौलाना मुहिबुल नबी, मुफ्ती मोहम्मद हसन यासीन फारूकी और मौलाना ज़हीर कमर ने दुरुस्त जवाब देने वालों को इनामात से नवाजा। खत्म नबूवत इनाम घर में अहले इलाका, वुकला, उलमा कराम और असातिज़ा समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। गुलबर्ग के निजी रेस्टोरेंट में डॉक्टर आरिफ की सरबराही में पोस्ट पेंडेमिक अदमी शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। और उम्र गुजरी है किसी दश्त की सैयारी में और बातनी पुश्त है शब्बीर की मद्दारी। गुलबर्ग के निजी रेस्टोरेंट में डॉक्टर आरिफ की सरबराही में कोरोना वायरस की वबा के बाद अदब और सकाफत के हवाले से अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें जॉन एलिया, गालिब, मीर तकी मीर और मुख्तलिफ शौरा का कलाम पेश किया गया। शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। अदबी नशिस्त में नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस बात का भी शुक्र अदा किया कि वबा के बाद दोबारा से अदबी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। डॉक्टर आरिफ का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल में अदब और सकाफत आम करने के लिए इस तरह की नशिस्तों की अशद जरूरत है। वो लोग जिनकी मुफलसी के बेलिबास जिस्म को जरूरतों की बेलिहाज आग ने बदल दिया है नीस्ती के बेजहां निशान के निशान में। नौजवान नस्ल में आगाही और शाऊर पैदा करने के लिए इस तरह की मजीद नशिस्तों का इनेकाद होते रहना चाहिए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए वर्ल्ड फूड ग्रुप की जानिब से लाहौर के निजी रेस्टोरेंट में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्लॉगर्स, फनकारों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्ल्ड फूडीज ग्रुप की जानिब से खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए लाहौर के निजी रेस्टोरेंट में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में फनकारों और ब्लॉगर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मशहूर ब्लॉगर फातमिश का कहना था, कोरोना वबा की वजह से लोग घरों में बैठकर बोर हो चुके थे और इस तकरीब का मकसद दोबारा से रौनकें बहाल करना है। ब्लॉगर्स का कहना था कि इस तरह की मजीद तकरीबात का एहतमाम होते रहना चाहिए ताकि अच्छे खानों और सेहतमंद सरगर्मियों को प्रमोट किया जा सके। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी देर बाद ऐसा इवेंट आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से हम बहुत दूर दूर थे, लेकिन हम लोगों ने जो फूडीज का इवेंट करवाया, हम लोग सब मिल के इकट्ठे बैठ के डिनर करें। और क्योंकि पेंडेमिक में, कोरोना में हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी लोगों को, होटल्स और हर चीज बंद थी। हम लोग तो लाहौरिया वैसे ही खानों के यकीन है, तो एक बहाने से खाना भी है और फ्रेंडशिप भी है और दोस्ती और एंटरटेनमेंट भी है, बहुत मजा आ रहा है। तकरीब के मुंतज़मीन वहीद खान और नादिया का कहना था कि लाहौरिये चूँकि खाबों के शौकीन है, तो हम चाहते हैं कि लाहौर में इस तरह की मजीद सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका मिल सके। की सिचुएशन इज नॉर्मल नाउ, इट्स नॉट दैट पैनिकिंग। तो हमने चेंज ओवर किया एटमॉस्फेयर के लोगों के लिए, एक थोड़ी सी सुहानी शाम अरेंज की जाए। इट्स अ मीटअप फॉर फूडीज ऑफ द वर्ल्ड एंड स्नैप एंड शेयर। दे बोथ आर ग्रुप्स ऑन फेसबुक, क्लोज ग्रुप्स हैं। हम लोग उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तकरीब में आने वाले ब्लॉगर्स और फनकारों को इंतजामिया की जानिब से इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। इस्लामाबाद के शबीर इकबाल ने PGF मैच प्ले गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। चैंपियनशिप के फातेह और रनर अप गोल्फर्स ने मैच प्ले चैंपियनशिप तसलसल से करवाने का मुतालबा कर दिया है। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में होने वाली PGF मैच प्ले गोल्फ चैंपियनशिप इस्लामाबाद के शबीर इकबाल ने जीत ली। फाइनल में रावलपिंडी गोल्फ क्लब के मोहम्मद मुनीर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एमेचर कैटेगरी में कासम अली खान फाते रहे। एमेचर फाइनल के 18वें होल पर सलमान जहांगीर दस्तबरदार हो गए। सलमान जहांगीर इंजरी के बायस फाइनल जारी न रख सके। प्रोफेशनल कैटेगरी के फातेह शबीर इकबाल और रनर अप मुनीर अहमद ने तसलसल से चैंपियनशिप करवाने का मुतालबा किया। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, प्रोफेशनल की गोल्फ प्रमोट होती है, तो पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को चाहिए कि इस तरह के टूर्नामेंट 3-4 होने चाहिए। काफ़ी अर्से बाद ये टूर्नामेंट हुआ है, अच्छी शुरुआत है।
PGF کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس ٹورنامنٹ کا، میچ پلے کا. یہ ایک اپنا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور یہ بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہے. چیمپئن شپ میں اسٹروک پلے کے بعد ملک بھر سے 16 ایمیچر اور 16 پروفیشنل گولفرز نے حصہ لیا. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے گولفرز میں انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.